Good morning, everyone. Good morning, students. Okay. So I wish there are less people. So if more people can join, we can start the class. Okay. Please convey your friends and tell your other different friends that the class has started so that they can start attending the class. Okay. Yes. Great. So, as you know, everyone, before starting our Avanti classes, we have a proper protocol of how to do the session, right? So, every time we start the session, we take a technical poll. So, let's take the technical poll and understand if there are any technical issues, if you are not able to hear my voice, or any problem in the internet connectivity. So, please make sure that you are answering me in the poll. Okay. So, as I can see, great. So nobody has any internet issues. Nobody is facing any technical problems. Okay then, great. We'll move ahead. We'll move ahead then. Yeah. Okay. Great, great, great. Yes, yes. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Okay. Then let's move ahead and start today's class. Okay. So for those people who doesn't know me, I'm the Ghazala Firdos. I'm Ghazala Firdos of Avanti faculty, and I'm one of the biology teacher here. Okay, great. So, as you know, we had already started the chapter ecosystem, and now we are verge of finishing this chapter. ठीक है हम लोग बहुत end में हैं, and we are trying to finish that chapter of today. So let's do that quickly and start the next chapter in the next class. Okay, so we'll try to wrap up this chapter. If you have any doubts, please make sure to ask in the chat box and in the last duration where I'll be giving you some doubt for clarification of doubt. Okay, so you can ask anytime. My chat box will be always open. Okay, okay. Without any further delay, let's start then. Great. So there is a question on the screen. Okay, and this question is taken from your last classes. Okay, the question says match column 1 with column 2 and choose the correct option. Okay, and choose the correct option. So in the column 1, you are going to see a primary succession, climax community, consumer, producer. In the column 2, you are going to see autotrophs, community that has completed succession, colonization of a new environment, and okay. So please make sure that you answer your option in the chat box for those people who are in YouTube. And for the Zoom people, I'm going to launch a fancy poll. You can answer it there. Okay. So yes, please make sure that you answer in the poll for the Zoom people, and those who are in the YouTube, please make sure to answer in the chat box. Okay. And please remember one thing, whenever you attend any session, interaction is very important. If you don't interact with the teacher, then how would I come to know that you're understanding my concepts or not? So that is why please make sure that you have to be very interactive. And if you have any doubts, please make sure by asking those doubts. Okay, great. So I will be giving you 50 seconds. Okay, already 40 seconds are done. Great. Last 5 seconds. I want everyone to answer. Yeah, sure. ठीक है बहुत सही हो गया. Now let me end the poll. Let me end the poll. Okay. Yeah. So I'm sharing the result with you. So yeah, few people have chosen the correct answer and few people have not. So let's discuss that now. Okay, let's discuss that now. Okay. So what actually they're asking in the question is very simple. It's very super simple. Okay. So what is primary succession? Okay, I hope we have studied in the last class. Succession means what? When any community, okay, is starting from the basic, very basic. For example, there is a zero CL, okay, where there will be the rocks, and those rocks are getting withered, okay, withered off to get the soil. From that soil, new plants will grow, and then it will come to many stages of community. Okay, first it will grow into the smaller plants, then little bit bigger, then ultimately it will reach to the climax.
So that climax community is the very stable community which will maintain itself in the biosphere for the very longer duration. That is primary succession. So let us see that if they have given here, they have given community that has completed the new succession. No. Colonization of new environment. Yeah, we could say that. Okay, primary succession means what? पहले वहां पे कुछ नहीं था, अभी वहां पे न्यू एक कम्युनिटी बन गई है, एक कॉलोनी बन गई है, एक पूरा जो है एक बायोस्फीयर का एक नया पार्ट बन गया है वहां पे. ठीक है. सो आई वुड से ए के लिए ना 3 बहुत सही ऑप्शन है. ठीक है. नाउ climax community. Climax means what? Just now all the stages of this year have completed and now that community is in the verge of end. मतलब क्या? That climax community is the one where you can see the larger trees, bigger trees, and that community is the stable one. ठीक है. जहाँ पे वो last stage कहलाता है. ठीक है. Community that has completed succession. So B is true. Okay, B is true. Now consumer. So who is consumer? Consumer is the one which consumes the producer. Okay, so consumer is definitely an animal here. Okay, and producer is the plant. So here in other words they have given autotrophs. Okay, plants की बजाय उन्होंने दिया है autotrophs. So this is D. Okay, so autotrophs is the producer and then animal is the consumer. Now let us see which one is matching the best here. So A3, great. B2, C4 and D1. So as you can see, A is the answer for our question. Okay, great. Did everyone understand? Yeah, sure. Then let's move ahead. Yeah. So as in the last class, you guys were studying about the succession and the Disha madam has completed the primary succession, right? So let us revise that a bit and then let's move into the further concept. Okay, here what actually is primary succession? देखो बेटा जब एक succession कहलाता है ना, there are 2 types of succession. One is primary, another is secondary. So what happens in primary is जहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम बैरन लैंड था, एकदम सिर्फ बेर रॉक्स थे, वहां पे कुछ कोई जीव जंतु नहीं थी, वहां पे क्या हो गया, एक पूरा कम्युनिटी बन गया, एक पूरा कॉम्प्लेक्स एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गया. ठीक है, एकदम नए तरीके से, मतलब फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द टॉप लेवल. ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. सो व्हाट दे आर सेइंग हियर, द सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड. वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं. ठीक है, ये जो बेर रॉक्स हैं उनको लाइकेंस में क्या कहते हैं, वो पियोनियर ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, दिस lichens secreted some organic acids like lichonic acid or carbonic acid. Then what happens, the rocks start to wither. So जब वो बड़े बड़े रॉक्स टूट के छोटे छोटे रॉक्स बनने लगे तो वो अल्टीमेटली सॉइल बन गया. जब सॉइल है हमारे पास, then what happened, they started a formation of small grasses, small herbs, small shrubs. तो ऐसे करते 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 हम लोगों को लार्ज लार्ज ट्रीज बन गए जो कि एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी है. ठीक है, सो हियर दे आर सेइंग, सो कैसे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हुआ? दिस इज बाय न्यूली कूल्ड लावा. लावा तो आपको पता है जैसे वोल्केनो में निकल के बाहर आता है ना. सो दैट लावा व्हेन इट इज कूल्ड डाउन, इट हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट. ठीक है, देयर इट माइट स्टार्ट एंड ऑन द बेयर रॉक्स, or you can say if it is an aquatic condition, it might start in a newly created pond also. ठीक है, pond में भी हो सकता है और कोई water reservoir में भी हो सकता है. ठीक है, so here they are saying to establish a biotic community, you need to be seeing the fertile soil. If there is no fertile soil, then problem will occur. So that is why the primary thing that will happen in a succession is formation of a soil. If there is enough fertile soil, then eventually, slowly, gradually, the succession will move on. ठीक है, जब soil है, the fertility है, जब plants भी आएंगे, फिर trees आएंगे, तो हम लोग को climax community मिल जाएगा. ये है primary succession. ठीक है, तो अब हमको जानना क्या है secondary succession. So secondary succession क्या है बेटा? ये बहुत simple है. ठीक है, consider an area where there was already a community. एक community already थी. But because of some reason, some unfortunate conditions, वहां पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया और पूरा बर्बाद हो गया. पहले था फिर बर्बाद हो गया. अब क्या करना है? Now it is completely destroyed.
So our biosphere will not leave it like that. Okay, it has to do something with it. It has to make something of it. So then what happened? This destructed area will start to succession once again. ओके क्यों? देखो, अगर फायर आ गया या कुछ भी, कोई लैंड को हमने क्या कहते हैं बैरन कर दिया या कोई फॉरेस्ट कट कर लिया, तो भी वहां पे लैंड तो है, फर्टाइल सॉइल तो है, तो वहां पे इनफ न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या होगा, स्लोली स्लोली वहां पे भी प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली इट विल आल्सो लीड टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। वो भी एक वक्त पे आके क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट। Okay, you have to always remember that. Okay, so succession takes place after the existed organism is lost. मतलब वहां पे था, वो गुम गया। क्यों? क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हो गया, आग लग गई या पता नहीं कुछ क्या कहते हैं, सुनामी आ गया, फ्लड हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अभी वहां पे फिर नया जीव आना है। सो दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सो कहाँ पे होता है सेकेंडरी सक्सेशन? In the abandoned farmlands and then burned or cut forests and lands which have got flooded. Okay, so one more point you have to remember is यहाँ पे secondary succession में जैसे प्राइमरी में हुआ था, newly the rocks were broken down, withered down and the new formation of soil, वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि soil यहाँ पे पहले से है, sediment यहाँ पे पहले से है, तो क्या होगा, सक्सेशन बहुत फास्टर रेट में मूव हो जाए। ठीक है, मतलब प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता, मतलब हर चीज से एकदम बेसिक छोटे 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 चीज से क्लाइमैक्स बनता। नाउ वी हैव इनफ रिसोर्स, we have enough reservoir, we have the good amount of fertile soil, and from this soil the plants will start to grow and it will take very less time compared to the primary succession. That's what is told here. Succession is faster, the secondary one is faster than primary. You have to remember this, it is a very important point. Okay, then the species that invade depend on the nature of soil, availability of water. So what this last point is saying, अभी देखो बेटा, जो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे जो लाइफ स्टार्ट होगा ना, ओके, सो वो डिपेंड करेगा वहां के सॉइल कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, वाटर डिफिशियंसी में है या स्केर्सिटी में है, या अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो सॉइल फर्टाइल है या नहीं। So based on these conditions, which type of species will grow, that will be considered. ठीक है, so चलो अभी हम लोग देखते हैं, look at this diagram, this beautiful diagram, you can understand very clearly here. This was the well established climax community, ये बहुत अच्छे से establish हुआ था। Then what happened? Because of the disturbance, there is a destruction in the community. ठीक है, कुछ तो हुआ, destruction हो गया community में, so there is a destruction or the disturbance. Now you can see all the trees are, got fired. Then what happened? The biota is removed. मतलब सारा जो plants, जो trees था, वो सारे जल गए. Everything is now went into the rain. So now what happened? Even though there is a biota removed, but soil remains. Soil अभी भी है वहां पे. ठीक है, तो ये soil क्या करेगा, हम लोगों को help करेगा फास्टर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स अब सॉइल है तो फर्टिलिटी भी थोड़ी बहुत होगी, तो इससे क्या होगा, छोटे प्लांट फिर बड़े प्लांट, फिर हर्ब्स, फिर शर्ब्स, फिर ट्रीज, तो हमको अल्टीमेटली we will be seeing a climax community is re-established. So this is secondary succession. Okay, you have to always remember this. Okay, now let us see the difference between primary and secondary succession. ठीक है, एक गुड डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, या सो द फर्स्ट कॉलम इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंड वन सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, जो सेकेंड वाला कॉलम है वो सेकेंडरी सक्सेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलो, या प्राइमरी succession occurs in an area which is barren or lifeless. मतलब क्या याद रखना है आपको, वो एकदम barren था और lifeless था, वहां पे कोई लाइफ नहीं थी, कोई बायोटा नहीं था, वहां पे न्यूली एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बना है, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेकेंडरी? सेकेंडरी इज दैट इट occurs in an area which has devoid मतलब आप समझो कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ है या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन से कुछ बर्बाद हो गया था। ठीक है, सो डिवाइड रिसेंटली एंड प्रीवियसली इनहेबिटेड, मतलब यहाँ पे पहले ऑर्गेनिजम्स थे, ओके, इवेंचुअली
वो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वहां से जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। नाउ इन प्राइमरी सॉइल इज एब्सेंट इन द बिगिनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉइल तो बिल्कुल एब्सेंट था। ओके, एंड द एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर सस्टेनिंग नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, तो वहां पे सॉइल भी नहीं था, एनवायरमेंट भी इतना फेवरेबल नहीं था ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे लेट प्रोग्रेस हो रहा था सक्सेशन। ठीक है, तो सॉइल नहीं था, ये जिसको क्या करना था इस सक्सेशन में, सॉइल को शुरू से बनाना था। Okay, the soil has to form, and from that soil the organisms has to occur. Okay, so that is what is very late now here. Okay, okay, this is soil. Okay, this is soil. So soil is present at the beginning of the secondary succession with some organisms. मतलब यहाँ पे soil नए से नहीं बना, it is not formed newly, it was already there because in that line the organisms had already inhabited. Okay, so because of that soil is present, and within the soil there is also presence of some organisms. Okay, there is also presence of some organisms. Okay, now so there is no humus in the beginning as soil is absent. Definitely यार देखो soil नहीं है तो humus कहाँ से होगा। ठीक है, ह्यूमस मतलब क्या बोलते हैं, अभी देखो कोई डेड डेड नीचे मैटर होगा, वो फिर प्लांट का होगा, एनिमल का होगा, वो फिर सॉइल में जाएगा, वो बन जाएगा ह्यूमस। ठीक है, या फिर कोई भी एक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे ह्यूमस बन जाएगा। जब सॉइल ही नहीं है तो देर इज नो चांस ऑफ ह्यूमस। बट यहाँ पे ह्यूमस इज प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, जो पहले लोग थे उनमें भी कुछ लोग मरे होंगे, तो उससे ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में आ गया, फिर वो लोग कुछ खाते होंगे, कुछ पत्तों को तोड़ते होंगे, तो उससे आ गया। सो दैट इज एन देन pioneer community comes from outside, that is often lichen। ठीक है, ये कहाँ से आया है, lichen से आया है, in a barren rock। ठीक है, so I hope you are very familiar with the lichen. Lichen is an organism which shows the symbiotic association or a mutual association between fungi and algae, दोनों साथ साथ में जीते हैं। तो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म हम लोगों को यहाँ पे पायोनियर कम्युनिटी बनाता है। मतलब स्टार्ट, पायोनियर मीन्स ऑलवेज अ स्टार्टर पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट कम्युनिटी लाइकेन से बना था। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड, द पायोनियर कम्युनिटी डेवलप्स पार्टली फ्रॉम प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स। पहले भी लोग थे ना, पहले भी द ऑर्गेनिजम्स वर देयर इन द सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। सो यूजुअली क्या होता है, वही पायोनियर कम्युनिटी बनती है। मतलब कुछ जो बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में, या कुछ छोटे मोटे ग्रासेस हैं, तो वही पायोनियर कम्युनिटी बन जाता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल दिया गया है, इट कैन स्टार्ट इन द कूल लावा एंड इट कैन स्टार्ट इन द बर्न्ड फॉरेस्ट। ओके, so I hope now the succession is very clear, primary and secondary. You have to read the NCERT ones and try to revise the concepts. It will be very clear for you. Now, so based on the nature of the habitat, प्लांट सक्सेशन इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो दो टाइप कौन से हैं, यू हैव टू रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन हैबिटेट। ठीक है, कौन से एरिया में सक्सेशन स्टार्ट होता है। अगर पानी में स्टार्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रार्क। अगर कोई बैरन लैंड में हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई बैरन लैंड में हो रहा है या फिर कोई रॉक्स में हो रहा है, ठीक है, आई विल नॉट से लैंड बट इट इज बेटर टू से रॉक्स। ठीक है, वहां पे अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जीरा। ठीक है, तो ये हो गया ना, लेट्स सी दिस इन डिटेल। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन इज सिंपली दैट it takes place in wetter areas. Wetter means what, there is a availability of water। ठीक है, जहां पे वाटर की प्रेजेंस हो उसको बोल रहे हैं। ओके, एंड इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मीसिक कंडीशन। So I hope you are very familiar with the hydric and basic. Okay, see, whenever you study the ecosystem, there are many conditions. Okay, there are aquatic conditions, which we call it as the hydrosphere. Okay, और क्या कहते हैं जो लैंड कंडीशन है उसको हम बोलते हैं मीसोस्फीयर या फिर मीसो कंडीशन। ठीक है, सो वो होता है। फिर कोई एक डेजर्ट कंडीशन है या कोई भी एक मतलब बैड लैंड है, उसको हम बोलते हैं जीरिक कंडीशन, या फिर उसको हम क्या कह देते हैं, जीरो सी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक होता है हाइड्रोसियर। ओके, हाइड्रोसियर, तो यहाँ पे होता है जीरो सी।
ठीक है. So this is an another term to understand. Okay, mesosphere is an another जो normal land, ठीक है, normal land जिसको हम कहते हैं वो. चलो now, so it takes place in a better place and it progresses from, मतलब organism का जो start हुआ था ना growth, वो water से start होके land में खत्म हुआ. ठीक है, water से start होके कहाँ पे खत्म हुआ, land पे खत्म हुआ. ठीक है. Then what is Zira condition? It takes place in the dry, which is a land only. It started taking place in the dry. It progresses from the dry land, or you can say barren or dry land, into the very fertile land. Okay, into the very fertile land. Into the mesic, we can call it as fertile land. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ना. तो यहाँ पे और एक important point दिया है which you have to remember is this: both hydrarch and xerarch succession lead to medium water conditions. Okay, that is mesic the climax femininity. Okay, अच्छा, तो मीडियम वाटर कंडीशंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो बेटा, aquatic मतलब फुल वाटर कंडीशन है. मीसिक मतलब देखो एक सॉइल होता है, सॉइल के नीचे फिर वाटर होता है, वो मीडियम वाटर कंडीशन है. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट लैंड ओनली. Okay, both started, hydrarch from the water started and xerarch from the dry land started, and they both ultimately reach into the medium water condition that is mesic. Okay, now चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, xerophytic. हाँ देखो, xerophytic habitat. So what happens here? Okay, here lichens are the pioneer species. Okay, whatever we have studied in the primary succession, उसको दिमाग में रखना बेटा, ये एकदम सेम है. ठीक है. So here lichens are pioneer. They secrete acids to dissolve rock, helping into the weathering and soil formation. जो rocks हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएंगे और eventually soil बन जाएगा. ठीक है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल इफ द एनवायरनमेंट इज अनचेंज्ड. अगर एनवायरनमेंट स्टेबल है तो जो कम्युनिटी बना है वो भी बहुत स्टेबल रहेगा. ठीक है, तो ये होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी. सो हियर यू कैन सी फ्रॉम द लाइकेंस वी गॉट द स्मॉल ब्रायोफाइट्स, स्मॉल टेरिडोफाइट्स और स्मॉल हर्ब्स और प्लांट्स. ठीक है, तो स्मॉल प्लांट्स तो शुरू हो गए, फिर बड़े बड़े वाले प्लांट्स, देन आवर बिगर फॉरेस्ट, एंड दिस इज द मेसोफाइटिक which started from the xerophyte, or you can say in the xeric condition. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा primary succession on rocks is also called as xerophytic habitat. ठीक है, जो barren lands start. Now there is an another, we call it as the hydrarch succession. So here what happens is very simple. तो यहाँ पे phytoplankton है, ठीक है, जहाँ पे water से land बनेगा. Okay, so here what we have to remember, there is a water in the beginning and eventually it will lead into the land. So यहाँ पे phytoplanktons है, यहाँ पे छोटे छोटे organisms होंगे. Okay, there might be some protozoans or there might be so many minute organisms. ठीक है, तो ये जो phytoplanktons है ये starting stage है, and from this we can see the submerged plant stage. Okay, you can see here there are many plants which are submerged. Okay, submerged means what? They are inside the water. Okay, so inside the water जो aquatic plants है, first with the phytoplankton started and now we have the submerged plant stage. And from the submerged plant stage what we can see, the floating plants. Okay, अब floating aquatic plants तो देखो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा. ठीक है, you can give an example of Pistia, Eicarnia. ठीक है, ये सारे floating हो गए. तो सबमर्ज तो ऑलरेडी थे ही, अब यहाँ पे फ्लोटिंग भी स्टार्ट हो गए. ठीक है, देन व्हाट हैपन, ये जो सबमर्ज्ड प्लांट्स थे वो अभी बढ़ने लगे. ओके, दे स्टार्टेड ग्रोइंग 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 एंड दे फॉर्म वेरी प्रोमिनेंट स्टेज, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज रीड स्वैम्प स्टेज. ठीक है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर है इन दैट कंडीशन, एंड देयर व्हाट हैपन, द बायोटिक सक्सेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. मतलब पहले कुछ नहीं था, फिर प्लैंक्टन्स आ गए, फिर छोटे प्लांट्स आ गए, फिर फ्लोटिंग वाले प्लांट्स आ गए. देन व्हाट हैपेंड, द प्लांट्स व्हिच वर सबमर्ज्ड दे स्टार्टेड टू ग्रो. बट वन थिंग यू हैव टू नोटिस, दे आर नॉट वेरी बिगर वंस. ठीक है, दे आर स्टिल अंडर वाटर. ओके, बट इन द नेक्स्ट स्टेज इफ यू कंपेयर हियर इन द मार्श meadow stage, those plants have started to grow much more higher.
ठीक है, जो पहले पानी की डिपेंडेंसी में होते थे अब वो क्या करते हैं और ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं. एंड हियर यू कैन सी दीज आर द बिगर plants have started to originate. And from this stage, you can see the scrub stage. Okay, and this scrub stage is common. You have seen this stage in the जीरोफाइटी कंडीशन ऑल्सो, जहां पे बैरन लैंड से आपको एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी मिला था. देयर ऑल्सो यू हैव सीन दिस स्टेज. ओके, so this is scrub stage where you can see the the shrub plants and the small trees. ठीक है, हर्ब्स भी होंगे, सारे मिलके कम्युनिटी बनाता है. एंड दैट इज दिस स्टेज. Okay, there are herbs also, there are shrubs also, there are small trees, and from here eventually the bigger trees will started to evolve. Okay, and ultimately you can see there is a forest, and this forest is our climax community. ये बन गया हमारा climax community. ठीक है, so this is what we have studied. So I hope everything is clear till now. ठीक है, तो यहाँ पे क्या sentence दिया है, let us see. With time water bodies converted into land. देखो start हमने water से किया था, so end हमने क्या किया, from the forest. Okay, so that is what we called it as. So hydra condition started from water and end in the mesic condition, that is in the land. So climax community is forest. Okay, climax community is forest. And here I have shown the very beautiful stages. तो यहाँ पे जो मैंने pictures के साथ दिया है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फ्लो चार्ट के तरीके में दिया है. प्लीज लुक इनटू इट एंड मेक अ नोट्स ऑफ इट. See guys, you can remember these concepts by making the short notes and the flow chart. Okay, so how much you shorten and how much you revise the concepts, then you will understand it very easily and याद रखने के लिए आराम हो जाए. ठीक है, now चलो. So till now we have understood about the succession, about the communities, about the population and everything. Now let's understand about the nutrient and their cycling. Okay, so as all of you are aware, in this biosphere there are many types of nutrients. ठीक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ओके, कैसे न्यूट्रिएंट जो है वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, फिर मिनरल न्यूट्रिशन आपने चैप्टर पढ़ा था. which mineral or which element is necessary for the growth of plant. मतलब देखो अगर मैं example लूँ phosphorus की, phosphorus is needed for the cell membrane. It is needed for the nucleic acid formation. You know, each nucleotide is made up of 3 components: sugar, phosphate, and nitrogenous base. ठीक है, वो हो गया. So और किसमें है, ATP, the energy currency. अगर ATP में phosphate है तो समझो बेटा we need phosphorus in larger amount. तो ऐसे phosphorus हो गया. Similarly we want carbon, because if you take the example of carbon, देखो बेटा कार्बन आपके अमाइनो एसिड में भी है. ठीक है, कार्बन एकदम बीच में बनता है ना, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. जो कार्बन है ना बेटा वो बीच में रहता है. फिर यहाँ पे देखो एक अमाइन ग्रुप आ जाता है, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहाँ पे H आएगा. देखो दिस इज एन अमाइनो एसिड, उसका भी स्ट्रक्चरल कंपाउंड कौन सा है, कार्बन है. अगर आप एग्जाम्पल ले लो एक शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेम इन द न्यूक्लिक एसिड, देखो उसमें भी क्या हो जाता है बेटा, देखो ऐसे हम लिखते हैं, है ना. सो दिस इज कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह पे कार्बन कार्बन है, हर जगह पे वो है, हर जगह पे H है. तो ये सारी चीजें क्या है बेटा. ओके, सो हर जगह पे नाइट्रोजन है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर कंटिन्यूअसली रोटेटिंग इन आवर नेचर एंड दीज आर बेसिकली वेरी एसेंशियल in all the life forms. Okay, so let us see that now. Okay, so what they're saying, amount of nutrients. Okay, here I have given some example of the nutrients, that is carbon, nitrogen, phosphorus, calcium. Okay, so present in the soil in a given time is called as standing state. मतलब ये जो minerals हैं they are present in the soil. Okay, जो उसमें nutrients हैं तो वो they are not inside the cycle now, मतलब अभी cycle में नहीं गए हैं, बस एक soil में present है, तो उनको हम बोल देते हैं standing state. But see, ultimately the soil is also an ultimate intermediate of any cycle, we know that. ठीक है, तो बस एक sentence याद रखना, because it is given in your NCERT, the amount of nutrients present in soil in a given time is called as standing state. Now अभी मैं आपको बता देती हूँ. सो ये जो इकोसिस्टम्स है हमारे बायोस्फीयर में,
they varies from the different seasons, ठीक है, different organisms, different environmental conditions. तो इसके हिसाब से हमारे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है वो हमको पता है, ठीक है. बट कोई भी इकोसिस्टम, whichever might be the ecosystem, but nutrients are never lost from the ecosystem. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कभी भी लूज नहीं होते. वो क्या होता है, मतलब दे चेंज देयर फॉर्म, दे माइट चेंज देयर फॉर्म, दैट्स ऑल. लेकिन दे विल नेवर बी लॉस्ट फ्रॉम द बायोस्फीयर, कि वो बायोस्फीयर से जाते नहीं है, ठीक है. तो ये बात बहुत जरूरी है. सो न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट. तो अभी क्या होगा मैम, तो ऑब्वियसली देयर इज अ साइकिल. कोई साइकिल है जो हाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है एक फॉर्म से और एक फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है. So nutrients are never lost and they're recycled again and again. So you might have studied the nitrogen cycle in 11th class. आपने 11th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है ना. सो नाइट्रोजन साइकिल में क्या हुआ था बेटा, ओके. तो नाइट्रोजन जो है वो कैसे अमोनिफाई किया था, नाइट्राइट जैसे आया था, नाइट्रेट कहाँ से आया था, वहां पे एंजाइम्स कितने लगे थे, वो सब पढ़ा है. बट हियर इन दिस चैप्टर we are going to study some more cycles but not the nitrogen cycle because we have already studied it. If you want the revision, please go back and look into the 11th class textbook, okay. So now movement of nutrient elements through various components of an ecosystem is called nutrient cycling, ठीक है. ये एक बेसिक डेफिनेशन है दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ओके. सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स. अभी देखो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी प्लांट में क्या है बेटा, प्लांट में कार्बन है, ठीक है, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उसमें भी फास्फोरस है. अभी क्या होगा, अल्टीमेटली जो प्लांट की लीव्स हैं दे स्टार्ट टू विदर ऑफ. देखो बेटा हर प्लांट का सेनेसेंस होता है. Initially there will be an younger plant or an younger leaf, then it will grow and it will reach into a senescent stage जहाँ पे the green color leaf will turn into the yellowish and it withers off, ठीक है. जब वो नीचे गिरेगा तो वहां पे क्या होगा, सेम दैट कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन दैट येलो कलर लीफ विल गेट dissolved और assimilated with the soil, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपोनेंट चेंज हुआ ना, पहले लीफ था अभी लिटर बन गया, तो अभी लिटर से क्या होगा, वो एक फर्टाइल सॉइल बन जाएगा, ओके. सो दिस इज व्हाट वी से मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट. अब देखो प्लांट से सॉइल में आ गया, अभी फिर सॉइल से क्या होगा, सॉइल से फिर किसी और प्लांट में जाएगा. तो ये होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट, okay. So this type of movement we call it as the nutrient cycling and इसको हम एक fancy name देते हैं, एक very important name, that is biogeochemical cycle, ठीक है. So biogeochemical cycle एक और एक नाम है nutrient cycling का. Now in your syllabus you have to study the two types of nutrient cycles. क्या आपके syllabus में दो टाइप का दिया है. So which are those? Yeah, gaseous cycle and sedimentary cycle. मैम ये गेशियस और सेडिमेंटरी क्या होता है, देखो बेटा वेरी सिंपल. गेशियस में देखो रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर में ही है. जैसे मैं बताऊं कार्बन, देखो कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. मतलब ये सारा जो है कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है. अब आप बोलोगे मैम एटमॉस्फेयर में भी है, हमारे अंदर भी तो है, हमारे अंदर भी तो है. लेकिन बेटा इस साइकिल में गेशियस कंडीशन में इन्वॉल्व हो रहा है. Now, what do you mean by that? That means along with us organic people or the organic matter, it includes the gaseous components or gaseous intermediates. तो इसीलिए इस साइकिल को gaseous cycle कहा है, ठीक है. Now, what is sedimentary cycle? So इसका जो बेसिक जो बड़ा रिजर्वायर है वो अर्थ itself है, ठीक है, जो अर्थ है. अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ बेटा फॉस्फोरस की, ठीक है. आपको मैंने बताया फॉस्फोरस हमारे अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, न्यूक्लिक एसिड में है, मेम्ब्रेन में है, एटीपी में है. लेकिन वो गया कैसे वहां पे, हाउ इट वेंट इनटू दैट प्लांट एंड इनटू एनिमल्स. इट स्टार्टेड फ्रॉम द क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है. अर्थ क्रस्ट में फॉस्फोरस का अबंडेंट है, इट इज अ रिजर्वायर. तो वहां से क्या हो गया, वो पहाड़ों की तरफ चला गया. Okay, we'll study the cycle of phosphorus. We need not to worry. ठीक है. So फिर पहाड़ों से क्या हुआ, ठीक है, withering of rocks. Then withering of rocks में क्या हुआ, it has formed into the soil. So in the soil we have phosphorus. So while the plants is absorbing the minerals, there is an absorption of phosphorus. तो ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे gaseous को हम involve नहीं कर रहे हैं. It is just a sedimentary. ठीक है, यहाँ पे sedimentary तरीके से हो रहा है.
Now there are two more points. So environmental factors such as soil, moisture, pH, temperature, they regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. ठीक है, अब देखो बेटा, जो कंडीशंस है एनवायरमेंट के, जो कंडीशंस है उसके हिसाब से, ठीक है, द मिनरल्स विल बी लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल. देयर इज अ बिग फॉरेस्ट, कंसीडर एन अमेज़न फॉरेस्ट. अमेज़न फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज हैं. जब बहुत सारे ट्रीज हैं तो क्या होगा, बारिश भी ज्यादा होगी. जब बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, ग्रीनरी भी ज्यादा होगी. एंड जब प्लांट ज्यादा है तो द लीव्स विल फॉल ऑफ. Okay, there is a good organic and good nutrient or fertile soil present in that land. Okay, there is no pollution. But when you compare that kind of soil with our soil, जब यहाँ पे हम देखो हमारे घर के पास तो जो सॉइल है वो इतना न्यूट्रिएंट नहीं होता, वो इतना फर्टाइल नहीं होता. क्यों? क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट का एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट है. हमारे जो लिविंग एटमॉस्फेयर जो हम यहाँ पे उसके फैक्टर्स डिफरेंट है. बस इतनी सी छोटी बात है जो आपको समझना है. ठीक है, चलो. देन the reservoir meets with the deficient or deficit of nutrients due to the imbalance in the rate of influx and efflux. देखो बेटा, रिजर्वायर तो है, ठीक है. रिजर्वायर, अब देखो गैसेस में एटमॉस्फेयर है जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सारे गैसेस हैं, ये रिजर्वायर है. एंड फॉस्फोरस और सल्फर में अर्थ है. बट इट विल बी डेफिसिट इन द न्यूट्रिएंट. डेफिसिट मतलब क्या, बहुत लेस. मिनरल्स ना यूजुअली इतने अमाउंट में होते हैं बट अभी कम है. सो ये होता है डेफिसिट. ओके, सो डेफिसिट कब होगा, जब एक प्रॉपर साइकिल नहीं रन होगा, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट साइकिल में जो प्रोडक्ट गिव आउट होता है या इनटेक होता है, कोई मिनरल इनटेक होता है, तो उसमें प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस. ठीक है, so when there is an imbalance in the intake of nutrient and given out of nutrient, then the proper cycle will not run and there will be an imbalance in the reservoir. Okay, influx means taking in and efflux means taking out or giving out. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो प्लांट है, प्लांट से फिर पत्ते गिरे तो सॉइल में गया, तो पत्तों से जो आया सॉइल में जो गया, तो ये सारा इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स होता है. जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वो इन्फ्लक्स है, जो प्लांट ने वापस दिया वो इफ्लक्स. डिड यू अंडरस्टैंड? It's very simple. Plant has absorbed through the water, through the roots, that is influx of minerals, and then it has given out into the soil in the form of leaves or a dried tree. ठीक है, लॉगिंग हो जाता है, कोई ट्री को कट कर देते हैं, फिर सॉइल में जाएगा, दैट इज इफ्लक्स. तो उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, अगर बैलेंस बिगड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. So this is very important slide because it is given in your NCERT. यहाँ पे कुछ numericals दिए हैं. Okay, so the reservoir of carbon is atmosphere, which we already know. Okay, reservoir of carbon is atmosphere. So atmosphere में carbon कितना है? Okay, only 1%. Then where is the remaining carbon? So it is present in the organism, that too 49% of dry weight. So if you're not familiar what is dry weight, देखो बेटा, there is a group of cell here. Okay, consider it is a tissue. Okay, so इस टिश्यू में क्या होगा बेटा, 95% तो वाटर होता है ना. What you did, you dried this. Okay, so you dried these cells and whatever the remaining, okay, जो ड्राई करने के बाद जो भी मटेरियल बनता है वो बनता है एक ड्राई मैटर. ठीक है, अगर आप इस ड्राई मैटर को वे करोगे, okay, if you take a weight of this dry matter, then you will come to know, okay, ये कितना वेट में है और क्या है. ठीक है, ये इसको आप वाटर के साथ एक नॉर्मल में सेल में करोगे, वो एक नॉर्मल वेट ऑफ सेल हो जाएगा. बट आफ्टर रिमूविंग द वाटर, व्हाट यू गेट इज द ड्राई वेट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन इन द ऑर्गेनिजम्स 49% ऑफ ड्राई वेट में है. मतलब सबसे ज्यादा कार्बन तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है. And why is that? I have told you. The carbon is present in every organic matter. It is present in the amino acid. Amino acid में है तो प्रोटीन में है, न्यूक्लिक एसिड्स में है. ठीक है, सो सारे जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर है उसमें. ठीक है, सो देन oceans. Okay, even in the ocean 70% of the dissolved. अब आप बोलोगे मैम डिजॉल्व्ड कार्बन है वाटर में. हाँ बेटा, ऑब्वियसली होता है. Okay, carbon is dissolved in the water and it also regulates the amount of atmospheric carbon dioxide. You might ask me, ma'am, how it is regulated? देखो बेटा, water cycle होता है ना. So there is a water cycle.
So what happened? The carbon which is dissolved in the water will ultimately reach into the form of clouds. ठीक है, evaporate होगा, vaporize होगा, clouds बनेगा, फिर बारिश आएगा. तो ये वाटर साइकिल में क्या है ना, ये कार्बन भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, so this is how it regulates the amount of carbon dioxide. ठीक है, वो हो गया. Now, so oceans में not just carbon is dissolved in the water, but even in the ocean there are aquatic plants, aquatic organisms, तो वहां पे भी है कार्बन. ठीक है, तो इसीलिए ओशन में ज्यादा परसेंटेज में है. क्यों? क्योंकि वाटर में भी है, aquatic organisms में भी है. And then other bigger part is fossil fuel. So if you say what is fossil, I would say अगर कंसिडर करो तीन चार ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या कर गए, दे हैव डाइड नाउ, सो नाउ दे विल बी लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड विच विल बी फीडेड बाय द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट. ठीक है, डेड एंड डीके होंगे एंड एज द टाइम गोज क्या होगा, वो अंदर 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 जाते जाएंगे, जो बोन्स बनेंगे. Okay, all the flesh is taken out and the bones, that bones will turn into the fossil. So वो fossil है हमारा abundance of carbon. ठीक है, वो fossil भी क्या जाएगा, soil में रहेगा, soil में dissolve होगा, तो soil में भी carbon है, fossil में carbon है, हर जगह carbon है. ठीक है, so this is how these points are important, you have to remember. Okay, now carbon cycling occurs through atmosphere, ocean and through living and dead organisms. Okay, so this is important point that you have to remember. Now let us understand the carbon cycle. ठीक है, उससे पहले देखो यहाँ पे भी लिखा है. Okay, so 4 into 10 to the power of 13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. Oh my god, तो photosynthesis में हर साल इतना amount of carbon fix हो रहा है. Okay, carbon is getting fixed about this much amount by photosynthesis only annually. एक साल में. ठीक है, एंड मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन. ठीक है, एंड ये जो प्लांट्स जैसे फोटोसिंथेसिस से कार्बन फिक्स कर रहे हैं, उसी तरीके से व्हेन दे डू द रेस्पिरेशन दे विल गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. है ना, तो बेटा वेरी सिंपल है, अगर फोटोसिंथेसिस बन रहा है तो क्या होगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, डू यू नो द इक्वेशन? प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अवेयर ऑफ इट. देखो बेटा 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, है ना. चलो, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, आई विल ओनली से. देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ you know carbon dioxide and water and with the presence of sunlight, what do we get the glucose, C6H12O6 and O2. ओके, सो ये जो 6H12O6 एंड O2 है, ये फिर रिवर्स जाएगा इन द रेस्पिरेशन. ठीक है, यहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फिर रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, सो इसी फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ था, कार्बन फिक्स हुआ था एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, डेफिनेटली बेटा देखो, वी आर द ह्यूमंस एंड ह्यूमन पीसेस होता है, वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ये सारे डिकम्पोज होके they will also join into the carbon dioxide. Okay, they will also release the carbon dioxide. And we have forgotten our beautiful decomposers, that is bacteria and the fungi. ठीक है, ये जो सारे हैं इनमें भी होते रहता है release of carbon dioxide. ठीक है, so now let us understand the human role in the carbon cycle. ठीक है, हमारे एक्टिविटीज से, ह्यूमन एक्टिविटीज से कार्बन साइकिल में क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट्स. ओके, सो सी, मैन इज नॉट डूइंग मच गुड, there we are doing much bad only. Okay, because see, man is a very like a selfish animal, you know, for our benefit we will do anything, literally anything. You have seen the biotechnology chapter, तो वहां पे हम लोगों ने बोला था ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग बना रहे हैं, उसी का एक इशू है, वही एक बायो एथिकल इशू बन गया था, है ना. सो इवन दो वी आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट, बट वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स लाइक दैट. ठीक है, हम लोग ट्रांसजेनिक रैट बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक माइस बना रहे हैं, माइक्रो को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उन बेचारे ऑर्गेनिजम्स पे, तो कितना हम लोग बुरा कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हो रहा है. वी आर द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. कि डिफॉरेस्टेशन मतलब व्हाट, जो अच्छा सा जंगल है उसको कट करके हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं.
ठीक है। सो झाड़ हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग को घर और बिल्डिंग चाहिए, मॉल्स चाहिए, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। एंड दीज आर द रीजंस दैट हैज इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एंड यू नो दिस इज नॉट गुड, this is not good because it will imbalance the amount of gases present in the atmosphere. Okay, so these are the important points I have picked from the NCERT which you have to remember. Now look at this cycle. ठीक है, इस ब्यूटीफुल साइकिल को अब हम समझते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी देयर इज अ सन। ओके, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एटमॉस्फेयर में है, तो यहाँ पे क्या हो गया। Okay, so what happened here? So photosynthesis has started in the plants with the help of sunlight. Okay, with the help of sunlight and the carbon dioxide. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प किया, सनलाइट ने लिया, फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ एंड प्लांट हैज ग्रोन। ओके, सो दिस प्लांट विल विदर ऑफ सम लीव्स। ठीक है, इसमें से लीव्स गिरेगा, फ्रूट गिरेगा, फ्लावर का मटेरियल गिरेगा। तो इसमें भी क्या था, बहुत सारा कार्बन था। दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कार्बन, you know, that transferred into the soil. Okay, then what happened along with that? Okay, there are some decaying organisms present in the soil कि सॉइल में भी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स है और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स विल फीड ऑन, ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स विल फीड ऑन दिस डेड एनिमल्स। ठीक है, जो देखो बेटा, जो कोई एक आदमी मर गया, समझो कोई एक एनिमल एक्सपायर्ड और पास्ड आउट, सो उसको हम क्या करेंगे, वी विल इवेंचुअली उसको ना क्या कहते हैं, वे हम उसको मिट्टी में निकाल के डाल के फिर यूज देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज मिट्टी से आई थी वापस मिट्टी में जानी है। ठीक है, सो देयर व्हाट हैपन, द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द soil will feed on this, animal, and ultimately it will give into the source for fossil fuels. ठीक है, ये हमको रिसोर्स बन जाता है फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन में। सो नॉट जस्ट एनिमल मांस और एनिमल का मीट वो ही नहीं है, इसका फीसिस। ठीक है, so the organic waste that is produced by the animal, this will also make the soil more carbon free। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट्स से आया हम लोगों को ऑर्गेनिक कार्बन, फिर डिकेड ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने डेड ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं फीड किया, देन वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर फीड किया, then it gave us the fossil fuel, then in return what happened, this has reached into the plant। ठीक है, तो ये जो कार्बन है अगेन व्हेन द प्लांट हैज स्टार्टेड टू ग्रो, तो प्लांट के डेवलपमेंट में भी जाता है, एंड अलोंग विद दैट प्लांट इज आल्सो रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से भी हम लोगों को प्लांट वापस कार्बन वापस जाना है। ठीक है, नाउ सो हियर व्हाट हैपेंड, सो फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, okay, from the industries we are eliminating lot of pollutants। okay, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये एक बड़ा पोल्यूटेंट है, सो इससे भी हम लोगों को कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ओके, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे प्लांट इज रेस्पायरिंग, सिमिलरली वी एनिमल्स ऑल्सो रेस्पायर। okay, so all the time we are inhaling oxygen, giving out carbon dioxide, so with the help of animal also we are giving carbon into the atmosphere. So these are all the ways by which carbon is getting in the cycle and ultimately returned into the atmosphere. So this carbon cycle has the reservoir that is atmosphere। ठीक है, तो atmosphere गैस से शुरू हुआ, फिर सेडिमेंटरी में आया, फिर एटमॉस्फेयर को चला गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैसियस। ओके, ऑर्गेनिजम्स में आया, फिर मिट्टी में भी आया, फिर अल्टीमेटली एयर में चला गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड अंडर द गैसियस साइकिल। ओके, सो गैसियस साइकिल। सो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे दिस इज योर एनसीईआरटी पिक्चर, यू कैन सी हियर। Okay, you can see here by what are the means we are contributing carbon dioxide in the atmosphere, कौन से means हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो आप, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, so यहाँ पे decay organisms है, the organisms are getting decayed and there are calciferous sediments। ठीक है, so यहाँ पे कुछ calciferous sediments हैं। ठीक है, उनसे क्या हो गया, फिर ये कैसे बने sediments? From the fishes, from the mollusks। ठीक है, जो मोलस्क होते हैं, जो शेल्स फ्रॉम वेयर यू गेट द पर्ल्स, तो वो होता है कैल्शियम वाला सेडिमेंट। ओके,
तो यहाँ पे फिर प्लैंकटन से आया, फिर उनके फूड चेन से, फिर ये सब एक देखो एक कॉम्प्लेक्स चेन है। ओके, एंड दीज आर रेस्पायरिंग, एंड फ्रॉम दैट रेस्पिरेशन यू आर सेंडिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो फिर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया, फिर यहाँ पे थ्रू एनिमल दे रहा है। ओके, फ्रॉम द एनिमल यू आर सेंडिंग इट आउट। ओके, एंड देन बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल और दैट ऑर्गेनिक डेब्रिस, ठीक है, वो जलाना करना उससे जा रहा है। एंड अगेन फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस है बाय विच वी आर सेंडिंग द कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर। ओके, तो चलो, यस, so actually we have very less time, so let's finish it off very soon now. Okay, so phosphorus is a constituent of biological membrane. I have already told you, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। जो फॉस्फोरस है वो कहाँ पे है, हमारे सारे मेम्ब्रेन्स में है, न्यूक्लिक एसिड्स में है, एंड इन द सेलुलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज एटीपी, एडीपी, एएमपी, ठीक है, इन सारों में फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो, तो अभी आप मुझे बताओ, कार्बन साइकिल तो गैसियस साइकिल हो गया, देन फॉस्फोरस साइकिल इज अ सेडिमेंटरी साइकिल, मतलब यहाँ पे गैस से, एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है, इट इज प्योरली रिलेटेड विद द ऑर्गेनिज्म और विद द लैंड। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैनी एनिमल्स यूज फॉस्फोरस टू मेक शेल्स, बोन एंड टीथ। देखो ये शेल्स में भी फॉस्फोरस है, ठीक है, फिर हमारे बोन्स में, ह्यूमन बोन में, फिर हमारे क्या कहते हैं टीथ में, ठीक है, बोन में हो गया, टीथ में हो गया, हमारे न्यूक्लिक एसिड में हो गया, मेम्ब्रेन में हो गया, सेल मेम्ब्रेन, so everywhere we need phosphorus. Okay, so how this is done, let us see. The natural reservoir of phosphorus is rock. ठीक है, आप मुझे पूछोगे मैम कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉस्फोरस मिलता है, वेयर इज द ओरिजिन, किधर होता है, क्या होता है? सो बेटा ये होता है रॉक में, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स के फॉर्म में रॉक में होता है। देन दीज रॉक्स आर विदर्ड, डेफिनेटली देखो बेटा धूप होती है, बारिश, धूप बारिश, धूप बारिश, तो रॉक विल व्हाट हैपन, इट विल बी हीटेड एंड कूल डाउन, हीटेड एंड कूल डाउन। जब रॉक इतना हीट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो अल्टीमेटली एक टाइम पे जाके ब्रेक होगा। That breaking of rock is nothing but withering of rocks, which will ultimately will make the soil. Okay, so in that soil we can see the dissolved phosphate. ठीक है, उस सॉइल में along with other minerals and nutrients there is a dissolved phosphate. ठीक है, अभी ये जो phosphate हमारे सॉइल में है वो प्लांट से एब्जॉर्ब होगा। देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इज हु, प्रोड्यूसर इज प्लांट। ठीक है, सो प्लांट में क्या है, अभी हमारा फॉस्फोरस है। ओके, सो दिस फॉस्फोरस इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, वी आर ह्यूमंस, ओके, हम मैन हैं। ठीक है, तो मैन ने क्या किया, कंज्यूमर किया। आपने कुछ समझो, आपने कोई पालक की सब्जी खा ली, ठीक है, पालक में बहुत फॉस्फोरस था, अभी वो आप में आ गया। ओके, सो नाउ इट इज इन यू। ओके, सो दैट्स व्हाट इज टोल्ड, प्लांट्स आर एब्सॉर्बिंग द मिनरल्स, बट herbivores and other animals obtain it from the plants. कि हम लोग डायरेक्ट फॉस्फोरस नहीं ले सकते बेटा। ठीक है, आप बताओगे क्यों मैम, हम लोग मिट्टी खा लेंगे ना फॉस्फोरस आ जाएगा। बेटा ये तो बड़ी मजाक वाली बात हो गई, हम मिट्टी नहीं खा सकते, इसीलिए तो भगवान ने हम लोगों को इतने अच्छे फल फूल और प्लांट दिए हैं। ठीक है, उसको हम लोग कंज्यूम करें। ठीक है, नाउ द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डीकम्पोज्ड बाय द फॉस्फेट solubilizing बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। देखो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हो गई। अब जो समझो ये कंज्यूमर है, ठीक है, सो दिस इज द मैन, when this man will give the detritus. So I hope you know what is detritus. Will you write in the chat box what do you know by detritus? जल्दी करो बेटा, I want you to interact because I'm seeing only I'm the one who is speaking, you guys are not speaking. ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग भी बात करो। नो, ओके, चलो कोई नहीं, फिर मैं ही बता देती हूँ। सो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर जो प्लांट है, फिर कंज्यूमर जो मैन है, सो ही विल ऑल्सो गिव सम वेस्ट। ओके, सो ये जो वेस्ट है इट माइट बी फ्रॉम लाइक यू नो डेड बॉडी, तो ये हो गया कोई डेड बॉडी, और यू नो एनी ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके, अगर प्लांट से है तो यू नो डाइड लीव्स, ठीक है, जो लीव्स है वो, सो ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेट्राइटस।
नाउ व्हाट विल हैपन, ये सॉइल में पड़े रहता है, ठीक है, सॉइल में गिरा होता है, एंड दिस विल अल्टीमेटली अंडरगो द डीकम्पोजिशन। ठीक है, अभी देखो कोई भी ऐसा डेड बॉडी क्या कहते हैं अर्थ में पड़ा है, तो वो तो ऑब्वियसली डिकम्पोज होना है, बिकॉज आवर सॉइल हैज लॉट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप सोचो हमारे अर्थ में डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया या डिकम्पोजिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता, देन दिस वर्ल्ड वुड बी फिल्ड विद डेड बॉडीज। व्हाट डू यू थिंक? हम लोगों से ज्यादा डेड बॉडीज पड़े होते हैं आजू बाजू। थैंकफुली आवर बायोस्फीयर हैज दोस decomposing organisms, वो decompose करेंगे and they will send those minerals into the soil solution। ठीक है, सॉइल में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, सो सॉइल से फिर प्लांट अपटेक करेगा मिनरल, तो यहाँ पे फास्फोरस फिर वापस आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया था, यहाँ से इनफ्लक्स हो गया था और यहाँ से इफ्लक्स हो गया। ठीक है, तो फास्फोरस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में मिला था, फिर कंज्यूमर से सॉइल, सॉइल से फिर प्रोड्यूसर को गया। सो लाइक दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। सो हियर फास्फोरस इज ओरिजिनली इज अ रिजर्वायर ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स में भी जब विदरिंग होगी, जब विदरिंग होगी तो इसमें भी सॉइल सोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ phosphorus which is present in the soil solution will also run off, okay, run off in the form of water, in form of water। तो रन ऑफ कहाँ पे होगा बेटा, कोई भी वाटर बॉडी में जाएगा। ओके, रन ऑफ मतलब कहाँ पे जाएगा, कोई भी एक वाटर बॉडी में जाएगा। सो आई वुड कंसिडर इट एज अ रिवर और एनी ओशन। ठीक है, तो ऐसे कोई वाटर बॉडी में जाएगा, तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस जाएगा। ठीक है, सो रॉक मिनरल से आया, फिर डिकम्पोजिशन से आया, फिर सॉइल से प्लांट में गया, फिर वाटर में गया। सो दिस इज द फॉस्फोरस साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, वेरी इजी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे मैंने और एक फैंसी डायग्राम दिया है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो हियर यू कैन सी, आपको यहाँ पे क्या देखना है, लुक एट दैट अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्वायर। ठीक है, अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्वायर क्या हो गया, दिस। ठीक है, तो यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्वायर है, यहाँ पे अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्वायर। ओके, सो फ्रॉम दिस अंडर वाटर व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द वाटर, ओके, सो यहाँ पे जो वाटर है इससे क्या हो गया, माउंटेन्स में चला गया, रॉक्स में असिमिलेट हो गया, इट हैज कैरिड विद द रॉक्स। ठीक है, अभी ये रॉक्स क्या होंगे, यू कैन सी हियर दीज रॉक्स हियर, सो दीज रॉक्स विल अंडरगो विदरिंग। ठीक है, विदरिंग ऑफ रॉक्स हो गया, एंड ये जो रॉक्स विदर करेंगे ये फिर कहाँ पे जाएगा, सॉइल में जाएगा। ठीक है, सॉइल में जाएगा। सो अभी यहाँ पे सॉइल में जाएगा, तो सॉइल से फिर रन ऑफ वाटर, डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, रन ऑफ वाटर इनटू द ओशन और इन सी और इन वाटर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ से पानी में जो फॉस्फोरस आया था वो सेडिमेंट हो गया इन द अंडर वाटर बॉटम। तो ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक साइकिल हो गया। ठीक है, अंडर वाटर फॉस्फेट से रॉक में गया, रॉक विदर हो गया, सॉइल में आया, फिर क्या गया, लीचिंग। लीचिंग मीन्स व्हाट, नथिंग बट सॉइल से जो है ना, यहाँ से फॉस्फोरस जो है वो पानी में असिमुलेट होता रहता है, मतलब सीप इन होता रहता है। ठीक है, लीच मतलब क्या, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब होता रहता है फ्रॉम द सॉइल इनटू द वाटर। ठीक है, वो हो गया। ना लुक हियर, सो अभी ये जो फॉस्फोरस है वो एब्जॉर्ब होगा प्लांट से, प्लांट से फिर एनिमल को जाएगा, फिर एनिमल मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन। ओके, ठीक है, तो ये जब डेड होगा तो वो फिर इसका जो वेस्ट है वो फिर इसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, एंड देन इट विल आल्सो गो इनटू द सॉइल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, ये जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर रन ऑफ, देखो बेटा ये एक फार्म है, इट शोज अ फार्म ऑफ एनी प्लांट, समझो पैडी का फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्टिलाइजर तो डालेंगे ही ना, वी विल ऐड द फर्टिलाइजर, सो दैट फर्टिलाइजर will also have phosphorus। okay, that fertilizer will also have phosphorus। so वो phosphorus क्या करेगा, फिर वापस पानी में जाएगा, फिर वहां से सेडिमेंट होगा। ठीक है, सॉरी, सो दिस इज द कंप्लीट फॉस्फोरस साइकिल। बहुत इजी है, पानी से सेडिमेंट होके फिर रॉक्स में, फिर रॉक से सॉइल, सॉइल से फिर प्लांट, प्लांट से एनिमल, एनिमल से डिकम्पोजर, अगेन सॉइल।
फिर फार्मर जो फर्टिलाइजर दे रहा है वो फिर लीच। ओके, वेरी सिंपल। नाउ देयर इज अ गुड डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। सो कार्बन साइकिल में क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक इनपुट इज हाइयर, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रोल है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, एटमॉस्फेयर का रोल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम। देन there is a gaseous exchange between organism and environment. That is why it is called as gaseous cycle, because gaseous exchange है ना organism में फिर environment में। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायर करके एक्सेल कर रहे हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर में जा रहा है, दिस इज gaseous exchange. But there is no such gaseous exchange here. That means it is very much negligible. So that is why इसको हम बोलते हैं sedimentary cycle. Okay, that is what we call it as sedimentary cycle. ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। ओके, नाउ देयर आर सम सर्विसेज गिवन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमको कुछ अच्छे सर्विसेज भी दे रहा है। देखो बेटा, इकोसिस्टम तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है ना, हम इकोसिस्टम के लिए कुछ अच्छा नहीं करते। ठीक है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत बुरा ही कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अर्बनाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। ठीक है, जो हम कितना प्लांट्स को निकाल रहे हैं उतना हम प्लांट्स को बेनिफिट भी कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड these plants are also a neighbor for us. अगर प्लांट्स नहीं है तो हम ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इकोसिस्टम हमको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। ओके, सो इकोसिस्टम, लेट अस सी। सो इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हेल्दी फॉरेस्ट, मतलब एक हेल्दी फॉरेस्ट को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। देखो, प्यूरिफाइड एयर एंड वाटर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। देन मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। देखो, जब कोई लैंड में प्लांट्स या ट्रीज ज्यादा नहीं होंगे ना, तो फ्लड्स और ड्रॉट ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लड ज्यादा होता है, फिर ड्रॉट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लांट्स की प्रेजेंस होना जरूरी है। देन साइकिल न्यूट्रिएंट्स, मेंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। देन जनरेट करता है फर्टाइल सॉइल। मैंने आपको बोला ना, अमेजोन जंगल का सॉइल बहुत फर्टाइल है। क्यों? प्लांट ज्यादा है, बारिश है, वहां के एटमॉस्फेयर कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया बहुत है। ठीक है, अगर वही आप यहाँ के सॉइल को कंपेयर करो, कितना मतलब बेकार सॉइल है। ठीक है, सो जनरेट फर्टाइल सॉइल, इकोसिस्टम। देन मेंटेन द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। डेफिनेटली अगर जंगल ही नहीं छोड़ेंगे तो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएगा। तो जंगल रखो, प्लांट रखो, तो वाइल्ड लाइफ तो आ ही जाएगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। देन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं देता, एनिमल्स को भी देता है, इंसेक्ट्स को भी देता है, जो जो स्मॉल माइन्यूट एक्वाटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको भी अपना पार्ट देता है। पूरी तरीके से बैलेंस बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है, विच वी आर डिस्ट्रक्टिंग। ओके, देन पॉलिनेट क्रॉप्स। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर स्टोरेज साइट फॉर कार्बन। ठीक है, कार्बन के लिए स्टोरेज साइट। देखो बेटा, आप बताओगे अभी मैडम कार्बन तो एटमॉस्फेयर में बहुत है ना, लेकिन देखो बेटा, एटमॉस्फेयर में होगा तो प्रॉब्लम है, दैट इज वी हैव टू स्टोर इट। तो स्टोर कैसे करेंगे, ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म का अमाइनो एसिड में स्टोर करेंगे, न्यूक्लिक एसिड में स्टोर करेंगे, तो ऐसे स्टोरेज में फॉसिल में स्टोर करेंगे। सो प्रोवाइड अ गुड स्टोरेज। अगर कुछ भी यहाँ पे कार्बन का स्टोरेज ठीक से नहीं है, या हम एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन दे रहे हैं, तो वो इम्बैलेंसिंग इफ्लक्स एंड एफ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, देन प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। देखो, हम जो हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं या इंडियन कल्चर जो है, this is followed by our ancestral people. They pray and they do the puja of this nature. We pray for the sun, we pray the plants, we pray the soil. ठीक है, मिट्टी जो हमको दे रही है अन्न, उसको हमको प्रे करना है। तो ये सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे अंदर बढ़ाता है, एक ह्यूमैनिटी लाता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम हमको इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, एंड नाउ यू शुड से वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर इकोसिस्टम। व्हाट डू यू से, हम थैंकफुल है या नहीं? ठीक है, अभी आपको ये देखने के बाद तो आप लगेगा कि ओ माय गॉड, थैंक यू मदर नेचर जो तुमने हमको दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक पर्सन था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, उसने और उसके कलीग्स ने कुछ जो है रिसर्च किया। सो व्हाट दे स्टडीड इज, अगर हम जो नेचर में हमको फ्री में मिल रहा है उसको एक प्राइस टैग लगाएं,
ओके, बेस्ड ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई, या जो कुछ भी इकोनॉमिक्स हम लोग इसमें लगाएं, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम उसको प्राइस टैग देंगे, तो यहाँ पे देखो researchers have put an average price tag of 33 trillion US dollars, okay, for this global gross national product. Okay, this is nearly twice the value. समझ रहे हो आप? ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो इसमें कॉस्ट होता है वो यूएस के 18 ट्रिलियन डॉलर्स है, बट उसका ट्वाइस जितना हमको नेचर फ्री में दे रहा है, ठीक है, जिसकी हमको वैल्यू नहीं है, जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%। मतलब अभी मैंने जो इतना बताया ना, पूरे बायोस्फीयर को हम जो कंपेयर करके बता रहे हैं, जो प्राइस टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें 50% तक का सॉइल दे रहा है। और यार होना भी चाहिए, क्यों? अगर सॉइल नहीं है तो फार्मर प्लांट कैसे बनाएगा? अगर फार्मर प्लांट नहीं बनाएगा तो हम लोग को खाने के लिए चीजें कहाँ से मिलेंगी, है ना? दैट then contribution of other services like recreation nutrient cycle is ना 10% में हो जाता है। then the cost of climate regulation and habitat for the life wildlife is 6%. so like this you can say these much amount of cost का product हमको free में मिल रहा है and we're not buying, so you have to be very thankful for this. So this is a check for understanding question, you have to answer this question, okay? So refer the given nutrient cycle in a terrestrial ecosystem with few labeled mark A, B, C, D. ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है, you have to answer the question by looking at the options. ठीक है, ऑप्शंस दिया है, देखो यहाँ पे A है, B, C, D, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है. So I am giving you 10 seconds to look at the question and then I will launch the poll. Okay, very good. Yeah. So I'm launching the poll. Meanwhile, please make sure. Oh, कुछ तो हो गया गड़बड़. एक सेकेंड. Yeah, I have launched the poll. Please make sure to answer your question in the poll. Okay. If you have any doubts, you can ask the doubts. Okay. अगर doubts है तो session is free for the doubt solving also. चलो. Okay. So only one person has participated. No problem. अब हमें डिस्कस करेंगे ना तो समझ आएगा. So 100% रिजल्ट आया है ना? चलो देखते हैं. So A is producer. मतलब A क्या है बेटा? A producer है. I have told you these are plants. Okay? So ये एक plant है. चलो यहाँ पे ये बन गया था consumer. ठीक है? Consumer was a man or any animal. ठीक है? ये हो गया detritus. तो यहाँ पे क्या होगा? Decomposition. मैंने डिपोजिशन लिख दिया, एक मिनट. डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है. सो डिकम्पोजिशन एंड देन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन यू आर गोइंग टू सी द विदरिंग ऑफ रॉक्स, कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है हमारा विदरिंग ऑफ रॉक्स. सो नाउ लेट अस सी. ए इज प्रोड्यूसर, ए कंज्यूमर. अच्छा, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी गुड JNV DIU, योर आंसर इज करेक्ट. ओके, तो बहुत सिंपल था, ठीक है. सो नाउ आई एम लॉन्चिंग द NPS पोल. प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है. आपका वैल्यूएबल फीडबैक देना, मेरा टीचिंग कैसा लगा आपको. अलॉन्ग विद दैट आई एम गिविंग यू द होमवर्क. प्लीज ट्राई टू डू योर होमवर्क, ठीक है. आपको क्या करना है बेटा? आपको अपना NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि चलो अच्छे से रट्टा मारना है, ठीक है. तो NCERT पढ़ लिया, फिर मॉड्यूल क्वेश्चंस DPP सॉल्व करना है. फिर पढ़ने के बाद जब आपको डाउट आते हैं, ओके, सो पॉइंट आउट कर लो डाउट्स को एंड यू हैव टू आस्क दोस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक. ओके, सो वो डाउट्स आंसर करना है, ठीक है. तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन. अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और एल्स यू कैन. थैंक यू सो मच. Thank you.